voice is clearly audible to all? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So let's start. So in the last class, we were discussing the microprocessor versus the microcontroller, what are the basics and all. So just a review of that, I told you the difference between the microprocessor and the microcontroller. So when we have all the things, all the peripheral chips, etc. on the same single chip, तो उसको हम क्या कहते हैं माइक्रोकंट्रोलर. और जब हम उसको एज अलग अलग डिस्क्रीट एलिमेंट्स ऐड करते हैं तो वो माइक्रोप्रोसेसर के अंदर होता है. So these things we have discussed. So let's come to the next point. So this was your organization of a microprocessor based system, which we are having this. This is a microprocessor part. This is I/O devices. This is memory. तो यहाँ पे ये हमारा माइक्रोप्रोसेसर है. इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी एंड ऑल थिंग्स. ठीक है. अगर आपके बसेस पोर्ट्स, जैसे अगर हम 8051 की बात करें तो वहां पे आपके पास पोर्ट्स भी आ जाते हैं. तो जब सारे के सारे पोर्ट्स आपके पास सिंगल चिप के ऊपर होते हैं, दैट इज योर माइक्रो कंट्रोलर. तो माइक्रो प्रोसेसर में वी आर नॉट हैविंग दैट. Next comes the, like in this, we know what is ALU, that is the arithmetic and the logical unit. Register array means your collection of registers in which we will be storing some information. So ये internal registers होते हैं आपके. And then we have the control unit. Just wait, these people are coming late. So this is a microprocessor in which we have ALU, this register array, that is your all the temporary registers inside this. Then we have the input and output. In this we can have your keyboard, your LCDs, whatever input or output device you are choosing. And then we have this memory. So memory is further divided into two parts, that is RAM and ROM. So let's discuss in detail all these things. So what is your memory? Memory means anything which is storing the information. And memory में हम किस format में data store करेंगे? That is always in the binary format. That is zeros and ones. So memory जो है वहां पे हम डाटा भी स्टोर करेंगे. We are going to store the data as well as instruction. तो इंस्ट्रक्शन सपोज क्या है आपकी add a, b. तो ये हो गई आपकी इंस्ट्रक्शन. और a और b में जो डाटा पड़ा है वो भी आपका मेमोरी में जाएगा और ये इंस्ट्रक्शन भी आपकी मेमोरी में जाएगी. So we are going to store both the things, instruction as well as data, in the binary format in the memory. And we will provide this information to the microprocessor whenever it is needed. तो microprocessor को जब जरूरत होगी तो हम क्या करते हैं? We will pick it from the memory, we will place it inside the internal registers और वहां पे वो उसको प्रोसेस करेगा. So usually there is a memory subsystem. अब memory subsystem क्या है? Memory subsystem means कि memory के अंदर further हमारी कैसी divisions हैं. तो जिस सबसिस्टम में आपकी सारी चीजें आ जाती हैं. द रजिस्टर्स इनसाइड द माइक्रोप्रोसेसर, जितने भी आपके माइक्रो प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर्स हैं, इंटरनल रजिस्टर. तो उसके लिए यू शुड नो द इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ एनी माइक्रोप्रोसेसर और कंट्रोलर जब भी आपने उसके ऊपर प्रोग्रामिंग करनी है. ठीक है. तो ये हो जाते हैं इसके इंटरनल रजिस्टर. देन वी हैव रीड ओनली मेमोरी. रीड ओनली मेमोरी क्या करेगी? विच विल स्टोर द इंफॉर्मेशन दैट डजंट चेंज. अब ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन होगी विच वी वांट कि वो चेंज नहीं होनी चाहिए. एंड देन वी हैव थर्ड पार्ट, दैट इज योर रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम रीड और राइट मेमोरी भी कहते हैं. और ये हमारी यूजर की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं. तो कैन यू टेल मी एनी एग्जांपल फ्रॉम आवर एवरीडे लाइफ व्हिच वी आर यूजिंग, in which we can say कि this is in the RAM, this is in the ROM. We are having multiple devices at home in which we are having these microprocessors. And can you tell me the examples of those things? हार्ड डिस्क, फोन की मेमोरी. फोन की मेमोरी, यस. और पेन ड्राइव. पेन ड्राइव. सिर्फ सिस्टम की बात मत करो. आप यूजुअली जो डिवाइसेस अपने घर में यूज कर रहे हो आजकल वहां पे और भी. मैम, यस. I'm sorry to interrupt, but please, some students are still waiting. Can you please allow them? बेटा ये रोज का काम. ओके, आज के लिए मैं अलाउ कर देती हूँ, बट
Thank you, They should ma'am. join on time. हाँ जी, जस्ट लुक अराउंड यू, इफ यू आर सिटिंग इन रूम, तो कोई ऐसी चीज है जिसमें आपको लगता है कि उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर होगा? AC. Ma'am, this AC का washing. AC का रिमोट. या दी एसी ऑल्सो, आपके अंदर जो आपका टेम्परेचर, जैसे सेंसर्स लगे होते हैं ना, आजकल हम ऑटो मोड पे लगा देते हैं, जो कि आपके रूम के टेम्परेचर को सेंस करेगा, फिर उसकी इंफॉर्मेशन जो है उसके अंदर एक चिप लगा होगा, उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा एंड अकॉर्डिंगली आपका जो है एसी उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सेट हो जाएगा। तो एसी का रिमोट, योर टीवी, ठीक है, योर रेफ्रिजरेटर्स, योर वॉशिंग मशीन, योर कैलकुलेटर्स, योर माइक्रोवेव, तो हर चीज के अंदर आजकल क्या है, वी आर हैविंग सम चिप। तो वो चिप क्या होती है? दैट इज अ माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर, दोनों में से एक चीज होगी। तो जैसे आपकी वॉशिंग मशीन है या आपका माइक्रोवेव है, हमने किसी फूड को रीहीट करना है, या जैसे आजकल उसमें कुकिंग वो भी आता है कि यू हैव वांट टू मेक दिस, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें जो है टाइमर सेट कर देता है, टेम्परेचर सेट कर देता है, तो वो सब चीजें उसमें ऑलरेडी स्टोर्ड है ना, हम उनको चेंज नहीं कर सकते। या फिर उसके इंटरनल फंक्शनिंग के लिए जो उसका एक मेन प्रोग्राम होगा, जो आपका सारा उसकी चेक कर रहा है कि टेम्परेचर आपने कितना सेट किया है या किस तरह का फूड है उसको सेंस कर रहा है एंड ऑल, तो वो सारी की सारी सेटिंग विच दे वांट कि यूजर एक्सीडेंटली या डेलिबरेटली चेंज ना करे, वो कहाँ पे स्टोर करेगा? वो रोम के अंदर, ठीक है। बट आपने उसको कितनी देर के लिए चलाना है, रीहीट करना है, आप उसको 1 मिनट के लिए चला रहे हो, 10 मिनट के लिए चला रहे हो, ये हमारे पास होता है। दिस मीन्स ये किसमें जाएगा? आपके रैम। तो इसका जो मेन प्रोग्राम होगा विच दे वांट कि यूजर एक्सीडेंटली या डेलिबरेटली, है ना, उस चीज को चेंज ना करे, वो सारी चीजें आपके रोम के अंदर जाती हैं। जैसे आपको वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में डिफरेंट साइकिल्स हैं, है ना, तो वो साइकिल्स जो हैं उनकी प्रोग्रामिंग जो है वो सारी की सारी रोम के अंदर होती है, कि ये जो है आपका ये वुलन क्लोथ्स के लिए है, वो सारी सेटिंग्स। बट आपने जो चूज करनी है वो यूजर डिपेंडेंट है, तो वो किसमें आप एंटर करोगे? रैम। So the information which you want कि this should not change, that will go inside the ROM, or otherwise it will be going, जो temporary है आपने एक ही बार चलानी है, that will go inside the ROM. Hope it is clear. हाँ जी, yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So next comes the memory map and addresses. Memory map and addresses क्या होता है? तो जब आप memory map, what is what? Memory map is a pictorial representation of the address range. कि अगर आपके टोटल एड्रेस रेंज है 00 से लेके SSS तक, ये रेंज कैसे आती है ये भी मैं आपको बताऊंगी, हाउ वी आर गेटिंग दिस रेंज। बट सपोज आपके पास ये रेंज है 0000, ऑब्वियसली दिस इज इन द हेक्सागोनल सिस्टम, से लेके SS SSS, ठीक है। तो ये आप कैसे डिफरेंट चिप्स के अंदर, मेमोरी चिप्स के अंदर, है ना, रोम रैम को कैसे आप डिवाइड कर रहे हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? मेमोरी मैप। So this is the map of our memory. So like we can see in this particular picture, first जो addresses हैं आपके 00 से लेके 3SS तक, वो आपके यूजर ने किसको दे रखे हैं? EPROM. So this is the address range of EPROM. That is the electrically erasable and programmable ROM, जिसको आप इरेज भी कर सकते हो, दोबारा प्रोग्राम कर सकते हो। So this is your that. इसकी एड्रेस क्या है? 0000 से CSS। नेक्स्ट आपने 4 जो हैं वो चिप्स लगा रखी हैं, रैम के चिप्स। So we are having this first RAM chip, then second, टोटल आपके पास 4 RAM चिप्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो उनको भी आपने जो जो एड्रेसेस दे रखे हैं, जैसे RAM 1 को आपने दिया 4400 से 5SS तक, RAM 2 को दिया 6000 से 8SS तक, RAM 3 को दिया 9000 से दिस, एंड RAM। तो जो भी आप डिफरेंट चिप्स को एड्रेसेस दे रहे हो, दैट इज नोन एज द मेमोरी मैप। सो हाउ वी आर गोइंग द एड्रेसेस, तो उसके लिए ये चीज आपके किसके ऊपर डिपेंडेंट है? दिस इज इन दी कि आपके उसमें एड्रेस लाइन्स कितनी। एड्रेस लाइन्स क्या है? कोई भी कंट्रोलर है, जैसे अगर मैं 8085 की बात करूं, तो उसमें मेरे पास 8 डाटा लाइन्स हैं,
because this is a 8-bit microprocessor. तो 8 बिट को उसके अंदर लेके जाने के लिए आई नीड 8 डाटा लाइन बिकॉज दिस इज अ पैरेलल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, तो जो भी मेरे पास डाटा आएगा वो 8 बिट्स की फॉर्म में मेरे कंट्रोल प्रोसेसर के अंदर आता है. सो आई एम हैविंग 8 डाटा लाइन, बट इसमें एड्रेस लाइन कितनी है टोटल? 16 एड्रेस. अब ये एड्रेस लाइन हमें बताती हैं कि ये एड्रेस की रेंज क्या होगी. अब 16 है, दिस मीन्स मिनिमम एड्रेस क्या हो जाएगा? 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. ये मेरी एड्रेस लाइन है. तो मैं उसमें मिनिमम एड्रेस क्या डाल सकती हूँ? ऑल जीरो. तो ये मेरा बाइनरी फॉर्म में है. जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगी हेक्सागोनल में तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज दिस जीरो, इसका इक्विवेलेंट जीरो हो गया, दिस जीरो जीरो एंड जीरो. तो दिस इज 0 0 0 0. और इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है? आइदर वी आर हैविंग 0 और 1. तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑल 1. तो ऑल 1 में क्या हो जाएगा? दिस विल बी 1 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 एंड 1 1 1. तो ये 1 1 1 क्या बन गया? एफ एफ एंड. तो ये आपकी एड्रेस रेंज किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी? इट विल डिपेंड ऑन हाउ मेनी एड्रेस लाइंस वी आर हैविंग इन दैट पर्टिकुलर microprocessor. Let's take another example. Like suppose if I'm having only 8 address lines. अब मेरे पास 8 एड्रेस लाइन्स है, मीन टोटल 8 बिट्स है मेरे पास. तो इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये इसका मिनिमम एड्रेस हो जाएगा. मैक्सिमम क्या होगा? 1 1 1 1 1 1 1 1. तो दिस मीन दिस इज व्हाट? दिस इज 0 0 एच. और मैक्सिमम एड्रेस क्या हो जाएगा? एस एस. तो अगर मेरा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो 8 एड्रेस लाइन्स हैं तो उसमें मिनिमम एड्रेस मेरा 0 0 हो जाएगा और मैक्सिमम एड्रेस एफ एफ हो जाएगा. तो उस केस में अगर मैं एड्रेस लिख रही हूँ F8A0 तो क्या हो जाएगा? वो गलत, बिकॉज उसकी रेंज में ही नहीं है वो. तो हाँ, इन बिटवीन मैं कोई भी दे सकती हूँ लाइक A5H. तो वो उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाएगा, वहां से डाटा पिक करेगा एंड. So in this way, we have to first check how many address lines are there, how many data lines are there. Accordingly, we can make the memory map. Is it clear, or should I repeat using some another example? Sanji, should I repeat it again, or is it fine? मैम प्लीज रिपीट वंस. एक एग्जांपल और बता दीजिए मैम. Okay. चलो, अभी तक हमने 16 और 8 एड्रेस लाइन दी. सपोज आपके पास हैं 12 एड्रेस लाइन. अब ये सब लोग आप लोग बताओ. जस्ट ट्राई दिस. इफ एनी माइक्रोप्रोसेसर आई एम हैविंग टोटल 12 एड्रेस लाइन. पहले तो यहाँ पे 12 आप मिनिमम और मैक्सिमम एड्रेस बताओ. व्हाट विल बी द मिनिमम एड्रेस एंड व्हाट विल बी द मैक्सिमम एड्रेस? मिनिमम में क्या कहते हैं हम? ऑल जीरोस. और मैक्सिमम में कहते हैं ऑल वंस. बट अब टोटल कितनी है? 12. तो 12 लिख लो डिजिट्स. 1 2 3 4. पेयर्स हम 4 4 के ही बनाएंगे बिकॉज हम हेक्साडेसिमल सिस्टम यूज कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल सिस्टम. So I hope you all know what is this hexadecimal system, binary system. You all have studied in this your digital electronics. Yes, ma'am. Okay, that's fine. तो मिनिमम एड्रेस क्या हो जाएगा? टोटल 12 आप जीरोस लिख लो. सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो ये मिनिमम एड्रेस हो गया. इसको हेक्सागोनल में मैं चेंज करूंगी तो ये क्या हो गया? दिस इज इन बाइनरी. सो दिस इज 0 0 0 H. ये सिंपल. व्हाट अबाउट द नेक्स्ट मैक्सिमम नाउ? It will be 1 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 1. So this is what? F F F. तो अगर मैं उसको 16 वाले पैटर्न में लिखती हूँ बिकॉज नॉर्मली वी गो फॉर 8 और 16 और 32. तो मैं क्या लिख दूंगी? यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा 0 ऐड कर दूंगी. सो दिस विल बी 0 0 0 0 H2. यहाँ पे मेरे पास कोई नहीं है एड्रेस लाइन्स ये बिकॉज ये एग्जिस्ट नहीं करती. तो ये भी क्या हो जाएगा? 0. और बाकी सारे क्या हो जाएंगे? F. तो 0 F F
F H. So this will be the address range now. 000 आप सिंपल इतना भी लिख सकते हो, 00H to FFH, या अगर आपने 16 वाले फॉर्मेट में लिखना है जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है तो उसमें हम लिख सकते हैं 0000 और 0FFH. जी अगर 13 एड्रेस लाइन हो उस केस में कितना होगा? Now try for the 13 address line. All of you please try for 13 address line. 12 के लिए हमने ट्राई कर लिया है ये. हाँ जी डन. Anyone please tell. ट्वेल्व के लिए कर लिया. अगर 13 एड्रेस लाइन है तो यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा ऐड 0 ऐड हो जाएगी और यहाँ पे एक 1 ऐड हो जाएगा. ठीक है. बट बिकॉज वी नीड ऑलवेज अ पेयर ऑफ 4, दिस मीन इसमें अगर एक 0 आपने लगा दिया बाकी भी 3 0 होंगी और यहाँ पे बिकॉज वो एड्रेस लाइन आपके पास ऊपर वाली पे एग्जिस्ट नहीं करती तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट विल बी 0 0 0 1. तो क्या एड्रेस बना 13 एड्रेस लाइन के लिए? इट विल बी. मैम आपकी वॉइस काफी ब्रेक हो रही है. ब्रेक हो रही है? जस्ट वेट. Just hold, let me connect to the other system. Hello. Is it better? अभी तो क्लियर आ रही है मैम. Okay. So I was telling you कि 13 एड्रेस लाइंस के लिए अब हमें क्या करना है? 12 के लिए हमने ऑलरेडी किया तो 13 मीन्स एक और एक्स्ट्रा यहाँ पे 0 आ जाएगा बिकॉज 12 तो ऑलरेडी थे और 13 के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक एक्स्ट्रा 1 आ जाएगा. बट बिकॉज हमने जब हेक्सा में बनाना है वी नीड दी 4 डिजिट तो हम यहाँ पे बाकी के एक्स्ट्रा ये 0 लगा देंगे. तो इट विल बी 0 दिस ओवर हियर. तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? इट विल बी दिस 0. 13 एड्रेस लाइंस के लिए इट इज 0 0 0 0 H और जब मुझे 1 लेना है तो अब मेरे पास टोटल कितने 13 1s आने चाहिए. तो इट इज 1 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 1. ठीक है. तो बट अब इसका हेक्सागोनल बनाने के लिए फिर मैं क्या करूंगी? 3 एक्स्ट्रा जीरोस यहाँ पे ऐड कर दूंगी. तो इट विल बी नाउ 1 S S S S. तो 13 एड्रेस के लिए एड्रेस क्या बना? all zeros to 1 S S S H. Any doubt in this? मैम 14 लाइन का बनाना होता जैसे 14 लाइन का बनाना होता जैसे 14 लाइन का बनाना होता तब. हाँ 14 बनाना. हाँ 14 बनाना तो देखो एक यहाँ पे और 1 ऐड हो जाएगा. मिनिमम और मैक्सिमम एड्रेस ही होता है ना. व्हाट इज एड्रेस मैथ में क्या चाहिए हमें? उसका मिनिमम एड्रेस चाहिए कि फर्स्ट एड्रेस क्या होगा लास्ट एड्रेस क्या होगा. तो लास्ट एड्रेस का होगा ऑल 1, फर्स्ट एड्रेस क्या होगा ऑल 0. तो अगर 14 बनाना है तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा
ये तो 0 ही होगा, तो मिनिमम एड्रेस इज ऑलवेज 0 0 0 0 और मैक्सिमम में ये क्या आ जाएगा, इट इज 1 0 0 1 1 मीन्स व्हाट, इट इज 1 2 4 and 8, so it will be the SSSH for 14 address lines. Is it clear? यस मैम। Yes. Okay. तो जब भी आपको पहले एड्रेस में आप पूछेंगे, यू शुड ऑलवेज नो कि व्हाट इज दी, हाउ मेनी एड्रेस लाइंस आर देयर इन दिस. So let's go to the next part. So this was how the address range of the ROM chip it was there. तो फर्स्ट चिप के लिए उन्होंने क्या किया, अब मेरे पास टोटल एड्रेसेस हैं, ये मेरे पास एड्रेस है, ठीक है, टोटल है 0 0 0 0 से लेके एफ 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 तक. अब बट इसमें मुझे फर्दर 4 चिप्स को ये एड्रेसेस असाइन करने हैं, तो मैं क्या करूंगी, उसको डिवाइड कर लूंगी 0 0 से लेके, जैसे सपोज मैंने जो है 0 एफ 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 तक एक को दे दिया, देन उसके बाद 1 एफ 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 तक दे दिया, एंड सो ऑन. So how you are dividing the memory addresses between the different chips, that is also the part of your memory map. तो यहाँ पे जैसे हमने देखा मेमोरी मैप में उन्होंने टोटल 5 चिप्स लिए, एक रोम चिप ली और बाकी जो 4 हैं वो रैम की चिप्स ली. तो अकॉर्डिंगली आई कैन गिव देम द एड्रेसेस. तो रोम का एड्रेस हो गया 0 0 लेके 3FF तक, भी डाटा इसके अंदर है वो इन्हीं एड्रेसेस को यूज करेगा. रैम 1 को मैंने दे दिया 4400 से 5FF तक, एंड सो. So I can further divide this address between the different devices. अब ये मैनुअल डिवाइसेस को नॉर्मली जब हम कोई भी काम करते हैं आप अपनी प्रोग्रामिंग में, आप तो ये सिस्टम का काम होता है हाउ टू गिव दी मेमोरी मैप टू दी डिफरेंट डिवाइसेस. आप कई बार जैसे कुछ अपने सिस्टम के साथ अटैच करते हो ना, कोई न्यू पेरिफेरल डिवाइस यूजिंग ब्लूटूथ और एनी अदर थिंग, ठीक है, तो आप अगर अपने सिस्टम सेटिंग में जाके चेक करो तो वो अपने आप उसको एक एड्रेस असाइन कर देते हैं. तो दैट इज द वर्क ऑफ दिस सिस्टम which we observe in your laptops and desktops. Fine? Excuse me, मैम. Yeah. मैम जो आपने 13 एड्रेस लाइंस के लिए बताया है, ये 16 बिट सिस्टम 16 बिट नंबर्स है ना? हाँ जी, 16 बिट नंबर है. वो मैं आपको हाँ, जस्ट एक एग्जांपल बता रही हूँ कि अब आप, हाँ पूछो. अगर अब मुझे 13 एड्रेस लाइन के लिए 8 बिट नंबर में लिखना हो तो वो नहीं, दैट्स 0 नॉट पॉसिबल. कैसे लिखोगे? देखो, लाइन का क्या मतलब है, एड्रेस लाइन या डाटा लाइन का मतलब है वायर. जब आपने एड्रेस को कैरी करने के लिए आप कह रहे हो कि आपके पास सिर्फ 8 लाइन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये लाइंस मींस ये वायर्स हैं जो आपका एड्रेस को आइडेंटिफाई करेंगी किसी भी चिप के अंदर. बाहर से अगर आपने सिर्फ 8 लाइंस दी हैं, अंदर जाके वो 13 लाइंस में कन्वर्ट नहीं हो सकता. तो यही तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि किसी भी पेरिफेरल को जब एड्रेस असाइन होता है तो पहले ये चेक करता है कि ये कितनी उसके पास एड्रेस लाइंस है. हाँ, आप दूसरा काम कर सकते हो कि आपके पास टोटल 16 एड्रेस लाइंस हैं, ठीक है, टोटल 16 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. एक्चुअली दीज आर वायर्स ओनली. आपने उसमें से सिर्फ 8 अगर यूज करनी है दैट इज पॉसिबल, बट अगर 8 है उसको अंदर ले जाके आपको 16 बिट का एड्रेस आइडेंटिफाई करना है, दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज एक्चुअली तो कोई फिजिकल चीज है जो कैरी करेगी एड्रेस और डाटा. एड्रेस लाइन्स मीन वी आर हैविंग टोटल 8 पैरेलल वायर्स which will be carrying the data. 16 address lines means we are having a bundle of these 16 wires which will be identifying any address. हाँ, आपका एड्रेस अगर छोटा है तो आप उसमें से सिर्फ 8 एड्रेस लाइंस यूज कर सकते, बट द वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल. होप इट इज क्लियर. यस मैम. So this is the memory map. Next comes to execute a program. जब अब हमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, just let me clear all this.
So next is memory to execute a program. जब भी हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, यूजर क्या करेगा, वो इंस्ट्रक्शन को बाइनरी फॉर्मेट में मेमोरी को देता है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर उन इंस्ट्रक्शंस को रीड करेगा, जो भी डाटा उसको मेमोरी से चाहिए होगा उनको एग्जीक्यूट करेगा, वापस रिजल्ट आपको देगा। तो होगा क्या, सपोज आपने लिखा ऐड ए कॉमा बी, इसका क्या मतलब है, add the content whatever are present in these two internal register। तो ये दो आपके पास internal registers हैं, register A and this is register B। इन दोनों के कंटेंट को उसने ऐड करके वापस रिजल्ट जो है, तो इट विल ऐड A plus B and place the result in। ये जो हम इंग्लिश लाइक लेटर्स लिखते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, these are known as the mnemonic। Mnemonic means English like alphabet whichever are assigned to these instruction। अब आपके माइक्रो प्रोसेसर को तो सिर्फ जीरोस और वन समझ में आते हैं, तो ये ऐड का क्या मतलब है, हाउ इट इज गोइंग टू इंटरप्रेट दैट। तो एक्चुअली में क्या होता है, अब हम एज अ ह्यूमन बीइंग वी कैन नॉट रिमेंबर ऑल दीज बाइनरी पैटर्न, दैट इज ऑल दिस जीरोस एंड वन। तो हम क्या करेंगे, इन इंस्ट्रक्शन को, सपोज ऐड ए कॉमा बी का बाइनरी फॉर्मेट क्या है, इट इज 0111 और इट इज 1100, ठीक है। हमें ये याद नहीं रहेगा, बट अगर मैं ऐड ए कॉमा बी लिखती हूँ, आई कैन इजीली रिमेंबर दिस। इस बाइनरी पैटर्न को हम इंग्लिश लाइक नेम दे देते हैं, लाइक दिस इज द ऐड इंस्ट्रक्शन। सेम वे अगर मैं मल लिख रही हूँ मल्टीप्लाई के लिए, दिस इज मल ए कॉमा बी, तो उसका बाइनरी पैटर्न होगा 0110 1111। सपोज these are the arbitrary numbers। तो ये जो चीजें हैं जो हम इन बाइनरी पैटर्न को नेम दे देते हैं, दिस इज योर निमोनिक। तो ये किसका काम है, दिस इज द वर्क ऑफ द कंपाइलर। यस प्लीज अपना माइक बंद करो। तो यूजर क्या करेगा, इट विल एंटर द इंस्ट्रक्शन इन दिस फॉर्मेट, उसको जो है बाइनरी फॉर्मेट में आपका कन्वर्ट करेगा असेंबलर या कंपाइलर। उसके पास ये पूरा चार्ट होगा कि ऐड ए कॉमा बी का बाइनरी फॉर्मेट क्या है, तो वो उसमें वो कन्वर्ट करेगा। तो यूजर एंटर इट्स इंस्ट्रक्शन नॉट इन बाइनरी फॉर्मेट, एक्चुअली दिस इज नॉट देयर, वो निमोनिक की फॉर्म में एंटर करेगा। निमोनिक से बाइनरी फॉर्मेट आपका कंपाइलर या असेंबलर कन्वर्ट करेगा। माइक्रो प्रोसेसर उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को रीड करेगी, जो भी डाटा उसको ए और बी से चाहिए होगा उसको पिक करेगी, एग्जीक्यूट करेगी, एंड देन इट विल प्लेस द रिजल्ट इन मेमोरी और व्हाटएवर आउटपुट डिवाइस यू हैव कनेक्टेड। सो दिस इज हाउ द कंप्लीट प्रोसेस इज। तो किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास 3 साइकिल्स आर देयर। 3 साइकिल्स इज व्हाट, कि सबसे पहले आपका प्रोसेसर क्या करेगा, इट विल फेच द इंस्ट्रक्शन। जो भी आपने इंस्ट्रक्शन लिखी है इसको वो फेच करेगा। फेच करेगा मींस इट इज गोइंग टू रीड फर्स्ट, एडमिट इट इनसाइड द माइक्रोप्रोसेसर। फेच कर लिया, फिर उसको वो डिकोड करेगा कि इसका मीनिंग क्या है, व्हाट आई हैव टू डू। तो फेचिंग में इट इज जस्ट टेकिंग द इंस्ट्रक्शन। जब उसको डिकोड कर लिया, उसको पता चल गया कि मैंने ऐड करना है या मुझे मल्टीप्लाई करना है या फिर मुझे डाटा कॉपी करना है बिटवीन द डिफरेंट रजिस्टर, फिर वो उसको एग्जीक्यूट करते, देन इट इज गोइंग टू चेंज। So to execute a program, first microprocessor reads each instruction from the memory के अंदर आपने जितने भी इंस्ट्रक्शन लिखे हैं इसको रीड कर, फिर उनको इंटरप्रेट करेगा, डिकोड करेगा कि इसका क्या मतलब, एंड देन इट इज गोइंग टू एग्जीक्यूट दैट। तो आपका इंस्ट्रक्शन जो मॉडल है, इट कंसिस्ट ऑफ टोटल 3 स्टेप्स, फेचिंग, डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूशन। और ये कब तक होता रहेगा, जब तक आपने सारे इंस्ट्रक्शन जो हैं उनको कंप्लीट नहीं कर दिया। तो नॉर्मली जैसे मैं कोई भी मैंने प्रोग्राम लिखा, टू ऐड 2 नंबर,
है, तो मैंने टोटल 5 लाइन्स लिखी, 1 2 3 4 5 6। तो पहले माइक्रोप्रोसेसर इस इंस्ट्रक्शन को पिक करेगा, उसको फेच किया, डिकोड किया, एग्जीक्यूट किया, फिर सेकंड इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा, डिकोड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा एंड सो ऑन, जब तक उसको लास्ट इंस्ट्रक्शन एंड जो है वो नहीं मिलेगी, इट विल कीप ऑन डूइंग दिस। So hope this instruction cycle it is clear to you. Anyone? Please confirm. Yes, ma'am. Yes. Next one, what do you mean by machine language? आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर देयर? Can anybody tell? मैम 4 कौन सी? high level, low level, and assembly and machine Yes. language. High level language, low level, Assembly, machine level, and assembly level. Machine assembly and high level. Assembly and high level. Okay. तो देखो, आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं बेसिकली वो हैं कि दो तरह की होती है। वी हैव दी हाई लेवल लैंग्वेज एंड वी हैव दी लो लेवल। हाई लेवल में आपकी आ जाती है योर C++, योर C, एक्सेट्रा। लो लेवल मीन्स योर मशीन लैंग्वेज एंड योर असेंबली लैंग्वेज। तो एक्चुअली दिस इज अ सब पार्ट ऑफ। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हाई लेवल आपका कोई भी लैंग्वेज है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दी हार्डवेयर। इंडिपेंडेंट ऑफ हार्डवेयर मीन आपकी कंप्यूटर लैब में जहाँ पे C++ है, सपोज आपने किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम पे काम किया, अगले दिन आपको वो सिस्टम नहीं मिला, यू वेंट टू द सेकंड सिस्टम, आपने वहाँ से कॉपी किया पेन ड्राइव में, आपने वहाँ पे जाके इसको रन कर दिया, तो वो इंडिपेंडेंट होगा आपके हार्डवेयर। एक तो यहाँ पे क्या है आपकी पोर्टेबिलिटी से, यू कैन कॉपी एनीवेयर एंड यू कैन रन एल्सवेयर, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। सेकंड क्या है कि इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दी हार्डवेयर। डिपेंडेंट ऑन दी हार्डवेयर मीन्स कि आपका लैपटॉप जो है वो i5 प्रोसेसर है या पेंटियम प्रोसेसर है या i7 है, i3 है, इस चीज के ऊपर उसकी परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंड नहीं करती। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द। तो आप जो भी प्रोग्राम लिखोगे, कोड किसी भी उसके लिए, तो दैट विल रन ऑन ऑल दी, चाहे आप लैपटॉप पे कर रहे हो, डेस्कटॉप पे कर रहे हो, वो सब पे रन करेगा। बट दिस इज नॉट द केस विद द लो लेवल। लो लेवल मीन इट इज डिपेंडेंट ऑन दी हार्डवेयर। आपने एक कोड अगर 8085 के लिए लिखा, वो वहीं पे ही चलेगा, और जिस पर्टिकुलर आईसी में आप रन करोगे वो वहीं पे चलेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको, इट इज नॉट पोर्टेबल। फर्स्ट थिंग। सेकंड, यू शुड नो दी डिपेंडेंट ऑन हार्डवेयर क्या है कि यू शुड नो द इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ दिस। ऐसा नहीं है कि वो 8086 में भी चलेगा प्रोसेसर में, 8051 में भी चलेगा। तो इट इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दी हार्डवेयर। और ये जो नाम पड़े हैं वो भी इसी से पड़े हैं, बिकॉज जब आप अपना एक डिजाइन साइकिल में देखते हो तो सबसे ऊपर आता है आपका फंक्शनैलिटी। ठीक है, फंक्शनैलिटी मीन जहाँ पे आप सिर्फ फंक्शन की बात करते हो, और सबसे नीचे आता है आपका हार्डवेयर। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते रहते हो, इट इज मोर एंड मोर डिपेंडेंट ऑन दी हार्डवेयर। तो आपकी जो लो लेवल लैंग्वेज है वो यहाँ पे काम करती है, दे आर लो गोइंग डीप इनसाइड दैट पर्टिकुलर हार्डवेयर। और जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है तो वो सिर्फ फंक्शन पे काम करती है। तो आप C++, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ दिस थिंग कि हार्डवेयर में नीचे क्या होगा। इसीलिए इनका नाम जो है दैट इज हाई लेवल एंड लो लेवल। हाई लेवल में आपके जितने भी आपके कंपाइलर C++ हैं ये आते हैं। लो लेवल में योर मशीन लैंग्वेज एंड दी असेंबली। होप इट इज क्लियर?
Yes, ma'am. So what is machine language? Machine language is a combination of all these patterns 0, 0, 1, 1. तो हर एक पैटर्न को जितने भी आपके पैटर्न है 8 बिट है या 16 बिट, हम उनको एक पर्टिकुलर मीनिंग असाइन कर देते हैं कि इस बाइनरी पैटर्न का ये मतलब है, इसका मतलब नल है, या इसका मतलब ऐड है, या सब्ट्रैक्ट है, या और ऑपरेशन है. So this is when we are defining everything in the form of zeros and ones. So that is your machine language. बट जब आप एक मशीन लैंग्वेज को इंग्लिश लाइक लेटर्स असाइन कर देते हो कि ये जो है इस पर्टिकुलर पैटर्न का मतलब सब्ट्रैक्शन है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, दिस इज द असेंबली लैंग्वेज. तो एक्चुअली व्हाट क्या है, असेंबली लैंग्वेज से ही आपकी मशीन लैंग्वेज बनती है. आप पहले असेंबली में कोड लिखते हो, जैसे मैंने आपको कोई भी दिया कोड की लार्जेस्ट नंबर आपने फाइंड आउट करना है बिटवीन दी 10 नंबर, तो आप उसका कोड लिखोगे, उस कोड को आपका असेंबलर जो है वो मशीन लैंग्वेज की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा. So this is how it is. The machine language is the number of bits that form the word of a microprocessor is fixed for that particular processor. And bits से हमें पता चलता है कि टोटल हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन है. जैसे अगर 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर है तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे मैक्सिमम 256. इससे ज्यादा इंस्ट्रक्शन या डिकोडिंग आप उसको नहीं असेंबल कर. And some of the patterns they are given the some specific meaning है कि certain patterns are chosen और उसको हम मीनिंग असाइन कर देते हैं कि इस पैटर्न का ये मतलब है एंड. तो इस कंप्लीट पैटर्न को, कंप्लीट सेट ऑफ पैटर्न जो एक पर्टिकुलर प्रोसेसर के लिए हम यूज करते हैं, उसको कहते हैं उस माइक्रो प्रोसेसर की मशीन लैंग्वेज. तो जैसे अगर हम 8085 की बात करें, दैट इज अ 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर. 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर मीन्स टोटल ज्यादा से ज्यादा कितने यूनिक कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2⁸, that is 256 combination. This means हम ये 256 combinations को, this is combination 1, 2, इनको हम different meaning assign करते हैं. Reason. So that's it. So this is the meaning of the 85. Okay. अब इसमें से अगर हम 8085 की बात करें तो टोटल हमारे जो 256 पैटर्न्स हैं उनमें से हमने सिर्फ 74 इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बनाए. So we are having the 74 instructions. Rest they are used for the internal process of your microprocessor. So any doubt till now? No, ma'am. मैम प्रोग्राम ऑब्जेक्टेड लैंग्वेज भी होती है कोई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कोई? नहीं, प्रोग्रामिंग जो हमने करनी है वो असेंबली लैंग्वेज में करनी है. बाकी जो इसकी जितने भी आपके प्रोसेसर या कंट्रोलर्स हैं उनकी जो लैंग्वेज होगी दैट विल बी असेंबली लैंग्वेज. So we will first do all the instructions and the other thing more, then we are going to write the program. So, but ये for पूछ रहे हैं this कि you should ऑब्जेक्ट have the ओरिएंटेड, क्या कह रहे हो? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी होती है कोई, कुछ होती है कैसे? इसमें एक्चुअली एक एम्बेडेड सी होती है. जैसे अगर आपकी एक सी है लैंग्वेज और आज आपकी असेंबली लैंग्वेज है, इन बिटवीन जो इंडस्ट्री में यूज होती है उसको हम कहते हैं एम्बेडेड सी. व्हाट वी आर डूइंग इन दैट कि एम्बेडेड सिस्टम की उस पर्टिकुलर प्रोसेसर की हम जो है लाइब्रेरी सी में इंपोर्ट कर लेते हैं, देन वी आर राइटिंग दी प्रोग्राम समवट लाइक सी. इट इज नॉट एग्जैक्टली द सी बट इट इज अ मिक्सचर ऑफ एक्चुअली योर हाई लेवल एंड लो. असेंबली लैंग्वेज जो है दैट इज डिफिकल्ट टू डू बिकॉज अगर आप आज 85 प्रोसेसर पे काम कर रहे हो, कल को आपको प्रोसेसर चेंज करना है, तो यू शुड ऑलवेज लर्न ऑल दिस. बट एम्बेडेड जो सी है दैट इज हैविंग द advantages of both the things, means it is having the advantages of your high level as well as the low level. So this is embedded. But हमारे जो सिलेबस में है that is the pure assembly language. तो हमने embedded C नहीं करनी, we will be learning the assembly language in this particular. Any other thing? So rest we will continue in the next class. If you are having any doubt, you can ask, otherwise you can leave. Thank you, ma'am. Okay.
क्या मेरा Thank you, ma'am.